ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ NGO ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSME ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਵਾਘਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 200% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੇ ਔਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਟਫਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ, ਸਟੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ। ਔਰ ਇੱਕ 100-150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 4000 ਕਾਰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਕਾਰ ਹੀ ਖਲੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਣੇਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ को ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਂ ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਟੀ ਨੇ, D ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ डिसीजन लेने पड़ेंगे और ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। यूटिलिटी माल सर हमने पास करवाया है यहाँ अमृतसर में, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आज ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਨੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ यूटिलिटी माल ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ। ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, 21 ਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਏਗਾ ਉਹ 21 ਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ सकेगा। और उसके अंदर मॉल भी होगा, होटल भी होगा, एवरीथिंग उसके अंदर। मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब तक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इसको नहीं खत्म करना चाहेंगे, कोई MP बन जाए, कोई MLA बन जाए, नहीं खत्म कर पाएंगे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ माफिया। माफिया हम किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा आता है इलीगल वे से, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। मैंने बार बार CM को लिखा, CM ने कभी पूछा भी नहीं बुला के कि क्या दिक्कत है। ये नहीं ये CM, इससे पहले CM को भी लिखा। लेकिन मेरा मानना है कि हम केंद्र गवर्नमेंट को भी क्या बोलेंगे, इसके ऊपर कोई सख्ती करें, या तो सरकार को फाइनेंशियली हेल्प बंद हो कि जब तक आप इसके जो इसको तो फाइनेंस नहीं चाहिए, सरकार के पास पुलिस है, तंत्र है, उसको एक्टिव करना है। सरकार एक्टिव कर नहीं रही तो फिर हमें कोई ना कोई सेंटर को कोई सख्ताई लेके आनी पड़ेगी।
उसके लिए हम करेंगे कि जो जो सब्जेक्ट है, होम सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको मजबूर करेंगे कि ये सरकार इसके ऊपर सख्ताई करे, नहीं तो कोई ना कोई इसका प्रावधान। सर, और सर मैंने सबसे ज्यादा खर्चा, जो मेरा एमपी-लेड है, स्कूल बनाए सर मैंने 450 प्राइमरी स्कूल को एलिवेट किया, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं होगी वो ठीक नहीं हो सकता। गुरु नानक देव हॉस्पिटल में कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया है सर, और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, सब पे काम हो रहा है। मैंने एम्बुलेंस ली, वहाँ ऑक्सीजन जनरेटर लगवाए, अभी कोरोना में 3 जनरेटर लगे हुए हैं, पहले एक भी नहीं था। अब हमने उसके ऊपर और काम करें, लेकिन फिर वहां आ जाता है मेडिकल कॉलेज है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, हायर एजुकेशन, लेकिन उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कितना आगे काम कर पाती है हमारे साथ मिलके, ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं ग्राउंड लेवल की वही है ना। अब एम्स है सर, हमें एम्स मिला था, लेकिन एम्स यहाँ शिफ्ट कर दिएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, हरसिमरत कौर बादल लेके, लेकिन किसी ने बोला नहीं। मेरी अभी लड़ाई ये है कि अच्छा हॉस्पिटल, जहाँ गुरु नानक देव हॉस्पिटल भी अच्छा चले, और एक अच्छा हॉस्पिटल लाइक के एम्स अमृतसर में हो, और वो मैंने इनसे प्रॉमिस दिया है हाईकमांड से कि मैं जब बनते हैं इस लेवल का हॉस्पिटल जो है वो हम लेके आएंगे। देखिए, एक एक फेस देखे मुझे मेरा आत्मविश्वास तो बढ़ते बढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि जहां भी मैं गया, और मेरे केरल के वोटिंग सेकंड फेज में थे, उसके बाद तो मैं पूरा देश चला हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ, जनता भाजपा से थक गए। वो लोग बिल्कुल इस सरकार को वापस ले आने का इरादा नहीं है। उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स है वहां भी ज्यादा आवेश नहीं देख रहे हैं, ज्यादा ऊर्जा नहीं देख रहे हैं उनके लिए। और हमारे लोगों के लिए, और हमारे जो सहयोगी हैं जो दूसरे पार्टी हैं, जैसे तेजस्वी बिहार में या शरद पवार साहब महाराष्ट्र में, इस किस्म के हमारे सहयोगी सारे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनको अच्छे सीट मिलने वाले हैं। तो हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस जून 4 को नई सरकार बनाएगी। देखिए, मैं तो ये समझा कि मोदी जी खुद समझने लगे कि हार आने वाली है, और ये हारने का एक सबूत है कि इस किस्म की बातें जो ये हिंदू मुस्लिम, वो खुद कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम बात करेंगे तो मैं योग्य नहीं है प्रधानमंत्री होने के लिए, और फिर भी ऐसे अगले दिन भी ऐसे ही कहा। तो मेरे ख्याल में उसका मन जरा सा बिगड़ गया, क्योंकि भी हार, उनका विफलता अभी साबित हुआ है उनकी भी मन में। देखिए, पहली बात यह है कि क्या ना भगवान से ना एक प्रधानमंत्री से हम इस किस्म की भाषा सुनना अच्छा लगता है। क्या आप मुल्ला, मटन, मंगलसूत्र, गुजरा, ये सब एक प्रधानमंत्री के लफ्ज है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, जब, क्योंकि हम सब समान देते हैं, सब इज्जत देते हैं, प्रधानमंत्री स्थान तो सारे भारतवासियों का है। तो जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उस स्थान से इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो हमें तो बहुत बुरा लगता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वोट बैंक की बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे देश में अगर एक पार्टी है जो सबके नाम में काम करते हैं और सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी है। शुरुआत से ही हमारे जो रेपुटेशन है इस देश में, कि कोई भी भारतवासी नहीं है जिनके लिए एक जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कौन है वोट बैंक? पूरा देश है हमारा वोट बैंक। करंटली अभी इस सिचुएशन में जो आज का वोटर है वो पंजाब के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, एंड पॉलिटिकली व्हाट यू कैन प्रॉमिस? देखिए, पंजाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस। हमें तो लगता है कि पंजाब का विकास पूरा देश का हित में है। तो हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब, आपने जैसे कहा कि विक्टिम बन गए हैं कि सारे कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो केरला से आया हूं, मैं भी देखा हूं कि हमारे जवान युवा इस देश में रह के काम करने के अलावा छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब से भी निकल जा रहे हैं, केरला से भी जा रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम ऐसे देश बनाए कि हमारे युवाओं के लिए अवसर बढ़ जाए और वो यहाँ रहने चाहेंगे। तो इसलिए बड़ी जरूरी है कि पंजाब के लिए वर्क नहीं है ना। आप देखिए कि जब बेरोजगारी इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे यहाँ, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी, हम अर्थव्यवस्था एक सीधी जनता के लिए बनाए, कि हम काम वाले, हमारे फोकस है जॉब क्रिएशन। और जॉब क्रिएशन हमने हमारे मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र लिखे हैं उसमें काफी डिटेल में हमने बता दिया है कि किस किस्म के पॉलिसीज हम लेके आएंगे जो पंजाब में भी आपको बेनिफिट मिलने वाली है। बिल्कुल, आर्मी में तो पंजाबी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। मेरे ख्याल में एक जमाने में 25% भारतीय आर्मी पंजाब से ही थे। तो हम चाहते हैं कि आर्मी का प्रोफेशनलिज्म जो है, इसका जो एक्सेलेंट प्रोफेशनल क्वालिटी, मैं तो जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था, मैं तो समाधान में, पीस कीपिंग में था, और वहां हमारी भारतीय फौज की रेपुटेशन
दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मीज के में एक थे। तो ये है भारतीय आर्मी। अब आप 4 साल के लोगों को लेके आएंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग करके उनको फ्रंट लाइन पे भेज देंगे। क्या किस्म का हमारे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को खराब कर रहे हैं आप, ये अग्निवीर के नाम। और क्यों? पैसे बचाने के लिए। हमारे देश ऐसे बहुत बड़ा देश है और देश के अंदर हर राज्य में अपने ही राजनीतिक इतिहास है, अपने ही राजनीतिक कैरेक्टर है। तो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपने उदाहरण दिया पंजाब और दिल्ली के बारे में, मैं तो केरल और तमिलनाडु के बारे में बता सकता हूं। केरल में 55 साल से हम कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं और हम हर 5 साल सरकार बदलती रही है, कम्युनिस्ट एक तरफ से, कांग्रेस दूसरी तरफ से। लेकिन हमारे पड़ोस राज्य जो है तमिलनाडु, वहां सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, हमारे जो सहयोगी है मुस्लिम लीग और डीएमके, सारे एक साथ है। ना कोई तर्क है, ना कोई प्रॉब्लम है, सब एक साथ चुनाव लड़े। पिछले बार भी लड़े, आज भी लड़े और कल भी लड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये दो पड़ोस राज्य में ऐसे हो सकता है, तो क्यों नहीं दिल्ली और पंजाब में? दिल्ली के यथार्थ अलग है, जमीनी हकीकत पंजाब में अलग है। यहाँ तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या निकल कर आया? जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र अमृतसर था और इंडस्ट्री को लेकर आप बिजनेस सेंसिटिव, क्या निकल कर आया? देखिए, बहुत सारी चीज नहीं, भाजपा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं और लोग असंतुष्ट है अमृतसर में। आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने, कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहां बांग्लादेश साइड पे। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूं क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी बात कहा था कि आप आके देखिए वाघा में। उस जमाने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफी स्लो चल रहा था ट्रेड। और वो चाहता था कि हम आके देखें, क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के अलावा कम हो गए। देखिए, हमारी इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएंगे। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए हैं, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाए, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं, तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के? हमारे लोग को दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारे पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन आप ये भी जानिए कि हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाए लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम सुनते हैं। और आज जो ये 1.5 घंटे की बातचीत में अमृतसर की तरफ जो मैंने सुना और मैं जो जितने भी जवाब दे सका, मेरे ख्याल में इस किस्म की डायलॉग की बड़ी जरूरी है और हम पॉलिसीज को बदलने के लिए तैयार हैं। देखिए, नंबर बताना तो मेरे ख्याल में उपयोगी खेल नहीं है, क्योंकि नंबर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अंत में सिर्फ जून 4 को हम जानेंगे असली नंबर। एग्जिट पोल नंबर भी ठीक नहीं होता है, तो मैं अभी कहता हूं कि प्रथम जून को जब एग्जिट पोल निकलेंगे वो भी फाइनल नंबर नहीं, आप जून 4 तक इंतजार करनी चाहिए। लेकिन 400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि 400 नहीं पार कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में जो मैं देखा, जैसे मैंने कहा, मैं पूरे देश में प्रचार करके ये बोल रहा हूं कि मुझे काफी स्पष्ट हुआ है कि 300 भी नहीं पार करेंगे। भाजपा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनको सारे उनके सहयोगी के साथ भी मेजॉरिटी पहुंच सकेंगे। हमें लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है भाजपा को, और इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए जून 4 को या जून 4 के बाद। और उसमें मुझे ज्यादा शक नहीं दिखता, क्योंकि पूरे देश में हर चरण में हमने यही देखा है कि भाजपा का हाल बुरा होते रहते। और जैसे किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री के बोलने में ही ये समझ गया कि उनका मन बहुत ट्रबल्ड हो गया है, कि उनको लग रहा है कि अभी उनका हार कंफर्म्ड हो गया है, निश्चित हो गया है। लेकिन मैं ये से बताऊंगा कि गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सिंसियर काम है, बहुत हार्डवर्किंग प्रतिनिधि है अमृतसर का। वो बिल्कुल लायक है।
ये लायक है बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में तय करने का मुझे कोई हक नहीं है बताने के लिए। को पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। So 90% seems to be a bit high, but definitely there is a real problem of drugs and particularly smuggling from Pakistan. We have seen it by the land, we've also seen it by sea. There have been cases in which, unfortunately, large thousands of crores of drugs have been intercepted. So we know there is a problem. What we have to do is really tighten law enforcement. And inside Punjab, the police have got to do a better job, not only at the borders when it comes in, but also when it's distributed within the cities and within the towns. It is a very dangerous problem. कोई शक नहीं कि दोनों जगह में इंडिया गठबंधन बेहतर करेंगे। राजस्थान में पिछले बार हम शून्य थे, इस बार तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं तो गया नहीं राजस्थान क्योंकि हो चुका था जब मैं आ सका, लेकिन लोग मुझे जो बताए हैं वहां से बहुत बहुत इनकरेजिंग है। मेरे ख्याल में यूपी में भी आपको पता है कि हर चरण में अलग अलग सीटें वोट कर रहे थे, लेकिन हर बार जो खबर आ रही थी वहां से कि ये सब बदल जा रहा है, कि भाजपा के जितने 65 या कुछ सीट थे पहले उतना भी नहीं मिलेगा इस बार। वो कह रहे थे कि वो बढ़ते जाएंगे, अब नीचे होने वाला है भाजपा। कि जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सारे पार्टी में, हमारे पास 26 पार्टियां हैं, सारे नेताओं बैठ के वो लोग तय करेंगे कि उनमें से एक जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का काम करेगा और सरकार को नेतृत्व दे देगा, ये कौन होगा। मेरे ख्याल में हमारी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम है। हमारा बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल तरह से चला रहा है मोदी जी, ये नहीं होने चाहिए था। बिल्कुल हमारी चिंता ये है कि अमीर लोग के कर्ज अब माफ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज अब माफ नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है? कितने किसानों की आत्महत्या? 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक तरह समझ के पॉलिसीज को बदल। देखिए, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या, लेकिन क्योंकि हम अभी 10 साल बाहर रहे, हम देखा है कि क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और बहुत ज्यादा चीज नहीं चल रहे हैं, उसको बदल के ही हम काम करेंगे।